Alright class, so in the last class we have done something in terms of the male gametophyte. वो हमने देखा था, कवर किया था, समझा था हमने वहाँ पे. And अब हमारे यहाँ पे start करते हैं. Let's start with this. Female gametophyte हम यहाँ पे cover करते हैं. And we'll also try to see certain things of our pollination. तो आज का हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा टू सॉल्व एटलीस्ट लाइक 20 और क्वेश्चंस हम सॉल्व करें यहाँ पे PYQ एंड कुछ अलग क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करें. और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ वी आर ऑल्सो रिवाइजिंग दिस टॉपिक जो आप ऑलरेडी आप स्कूल में आप पढ़ चुके हो. ठीक है, सो आई विल बी स्लाइटली फास्टर आज. तब भी अगर आपका कोई क्वेरी होता है या कोई सवाल आता है देन यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क अ क्वेश्चन. ओके, चलिए. सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर. All right, so in the last class we have done this few questions based on your male reproductive part. अब इसके हम आगे देखते हैं. So now आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा to understand the female reproductive organ and also megasporogenesis. इसको हम यहाँ पे समझेंगे. So when I talk about my female reproductive part, you have a stigma, style, ovule, and ovule आपका होगा ovary के अंदर. So ovary wall will be having the ovule inside. Okay. तो ये तीन आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाते हैं. Basically this is my carpel. ये मेरा यहाँ पे carpel, something you are all familiar with. And जो आपका pollen grain आके यहाँ पे बैठेगा, it will come and sit on the stigma. So pollen grain will come and sit on the stigma, and then the pollen tube formation will happen. So this is something you should all remember that if this is my stigma over here, तो stigma के ऊपर आके ही बैठेगा मेरे यहाँ पे pollen grain, and once my pollen grain comes and sits on the stigma, after that the pollen tube formation will takes place over there. ठीक है, फिर उसके बाद आपका pollen tube formation आपके यहाँ पे होगा, and जिसके अंदर से आप male gametes को आप अंदर भेजना चालू करोगे. Okay, then this pollen tube will be having those two male gametes जो आपके यहाँ पे अंदर जाना यहाँ पे चालू करेंगे. Okay, this yellow ball is my pollen grain. This is going to be my pollen grain. Okay, so you have a style, you have an ovule. So ovule is similar to your megasporangium. Ovule is similar to जैसे हमारा वहाँ पे microsporangium था, वैसे ovule आपके यहाँ पे हम उसे even एक और टर्म यूज कर सकते हैं. We can also call it as a megasporangium. ठीक है, याद रखना ओवरी के अंदर ही आपको यहाँ पे ओव्यूल देखने के लिए मिल जाएगा. So you have a stigma which is a landing platform for my pollen. Style, all right, okay. We have style, long slender part below the stigma from where the pollen tube makes an entry into the ovary. That's a long structure जो आपके यहाँ पे stalk like structure, that's your style. Ovary, the swollen basal part of the pistil is your ovary. और ovary के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे आपका ovule, right? And this is attached to my base जहाँ पे attached है, that is your thalamus. Inside the ovary, there is a cavity known as my locule. Placenta is present inside the locule from which the megasporangium या ovule is arises. So इसको हम थोड़ा डिटेल में इस पिक्चर को देख के हम यहाँ पे समझते हैं. So if you have a look at this picture right now, so you have this ovule in front of you. तो आपका एक डिटेल पिक्चर आपके यहाँ पे जहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ovule है. So you can see the ovule in front of you. This is your ovule. अब ये ovule मेरा यहाँ पे connected है मेरी ovary के wall से with the help of my funicle. So funicle जो आपका यहाँ पे होता है इसकी मदद से क्या होगा, my ovule is connected to the ovary wall, or either I should say my ovule is connected to the placenta by funicle, right? तो नीचे वाले एरिया में somewhere over here will be having the placenta, which itself is attached to the ovary wall. तो यहाँ पे will have something like your placenta. So placenta और ovule के बीच जो connection आपका यहाँ पे, that is my funicle is the connection over there. जहां पे मेरा फनिकल कनेक्ट कर रहा है मेरे ओव्यूल के साथ, दैट एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय हिलम. द पॉइंट वेयर माय फनिकल इज अटैचिंग विद माय ओव्यूल इज कॉल्ड एज माय हिलम, राइट? देन अंदर क्या है, विल सी दैट सेपरेटली, दैट इज समथिंग, विल हैव अ लुक एट दैट सेपरेटली. हम उसे वहां पे देखते हैं. यू विल हैव आउटर टू लेयर्स यू विल फाइंड ऑफ द ओव्यूल व्हिच आर कॉल्ड माय इंटीग्यूमेंट. सो इंटीग्यूमेंट्स आर माय आउटर कवरिंग्स ऑफ द ओव्यूल. बीच में आपको यू विल फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स व्हिच आर माय न्यूसेलस. बीच में आपको कई सारे आपको सेल्स मिलेंगे, यू कॉल देम न्यूसेलस. आपको ये बात भी यहाँ पे याद रखनी है कि कौन से यहाँ पे डिप्लॉयड है, कौन से हैप्लॉयड है. तो अभी हम जिन सेल्स की बात करेंगे, दे आर ऑल माय डिप्लॉयड सेल. न्यूक्लियस आपके यहाँ पे डिप्लॉयड होता है, इंटीग्यूमेंट आपके यहाँ पे डिप्लॉयड होता है, राइट? दिस आर माय डिप्लॉयड सेल्स. फिर अंदर हम यहाँ पे बनाते हैं एम्ब्रियो सैक, बट विल बी मेकिंग दैट सेपरेटली. ऑलराइट, ओके. फिरोजपुर बॉयज स्कूल हैज आल्सो जॉइन्ड द क्लास. ओके, राइट. नाउ लेट्स, ये तो हमने यहाँ पे पिक्चर दिखला कि मेरा ओव्यूल है एंड दैट इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग इन द ओवरी.
नाउ gynoecium इज अ जनरल टर्म जहां पे यू कैन हैव अ मोनोकार्पेलरी केस आपका हो सकता है, यू कैन हैव अ मल्टीकार्पेलरी सिचुएशन हो सकती है. मोनोकार्पेलरी मींस यू हैव अ सिंगल पिस्टल, you can have a condition where you have a single pistol. Multi-carpal मतलब you have multiple carpals over there, so you have more than one pistol over there. Okay. अब ये जो आपके पास पिस्टल है, either they can be attached to each other. अगर सारे मेरे पिस्टल यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच्ड है, so I am going to call them as a syncarpus. I'm going to call them as a syncarpus. So अगर मेरे सारे पिस्टल्स यहाँ पे अटैच है, then I'm going to call them as a syncarpus because I can say these carpals or pistils are going to be attached. अगर मेरे पिस्टल्स फ्री है, then I'm going to call them as a apocarpus. So carpals or pistils are going to be free over there. Okay. So basic ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपके कार्पल्स फ्यूज है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, अगर वो फ्यूज नहीं है तो उन्हें हम यहाँ पे क्या बोलेंगे. These are the examples. You can have a syncarpus and apocarpus. आपके सामने यहाँ पे example है, which are also mentioned in the NCERT as well. So these are the examples which you have to know. Now, if you just see the picture of the ovule now, so you can see you have a funicle over here. Funicle आपका connect कर रहा है आपके placenta के साथ. The point where my funicle attaches to the ovule is called as my hilum. अब इसके तरफ मैं यहाँ पे ध्यान इसलिए दे रहा हूँ because you will find statement and question coming based on this. Question directly नहीं आता, but कई बार statement आ जाता है. So you should know very clearly कि किस point को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं. So जहाँ पे मेरा funicle ovule के साथ attach हो रहा है, that point is called as my hilum. The point where my ovule is attaching to the placenta is called as my funicle, right? And then you have macropyle end. You have a one end is called my macropyle end, and the other end is called as my opposite end को मैं बोलूँगा यहाँ पे से chalazel end. मैंने आपको पहले बोला था बीच में you have some cells and those cells are called as my diploid cells, nucellus, and then you have your integument which is the outer covering of my ovule. अब आपको जो जनरली ओव्यूल मिलेगा एंजियोस्पर्म्स के अंदर, that is my anatropous inverted ovule. So the ovule which you'll get to see in the angiosperm is going to be your anatropous inverted ovule. हमेशा I would say majority of the plants will have this kind of ovule जो आपका inverted होगा. Inverted in the sense आपका macropyle यहाँ पे आपका नीचे है, चलाजा आपका ऊपर के साइड पे है, and that is my anatropous type of my ovule. अब ovule आपको बहुत अलग-अलग टाइप्स के आपको दिख जाएंगे. So you can see the picture over here. You have different type of ovules over here. Hemianatropous, orthotropous, campylotropous. So you have different kind of ovules. आपको याद रखना है कि जो आपके angiosperm में majority of the angiosperms will have anatropous type of my ovule, right? So I have a macropyle over here and chalaza at the opposite side. ये जो orthotropous होता है इसके बारे में आप इतना याद रख सकते हो. Orthotropous type of ovule I will find in my gymnosperms. Orthotropous type of my ovule is something I'll be finding in my gymnosperms. ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ माय ओवल. तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. नाउ सो यू कैन सी द ओवल ओवर हियर एंड अगर मैं आपको यहाँ पे लेबल करने के लिए बोलूँ यहाँ पे, देन यू कैन क्लियरली टेल मी जहाँ पे मेरा दिस इज माय फनिकल ना, दिस इज माय फनिकल, जहाँ पे मेरा फनिकल अटैच कर रहा है मेरे ओवल के साथ, वेयर इट इज गेटिंग अटैच्ड विद द ओवल, राइट. तो ये जो मेरा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अगर मेरा ये है, सो दिस ओवर हियर कैन बी कॉल्ड एज माय हिलम. ये लेबलिंग भी आपको मालूम होनी चाहिए बिकॉज दे विल आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेबलिंग एज वेल. दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी माय मैक्रोपाइल, दिस पॉइंट ओवर हियर इज माय मैक्रोपाइल एंड अपोजिट साइड गोइंग टू बी माय चलाजा एंड. सो जो मेरा अपोजिट साइड यहाँ पे था दैट विल बी चलाजा एंड, दैट इज माय चलाजा एंड. ओके, बाद में आपको यहाँ पे सेल्स मिल जाएंगे. द सेल्स व्हिच आई विल बी फाइंडिंग विद इन द ओव्यूल आर माय न्यूसिलस. तो जो भी यहाँ पे पहले तो चीज मुझे यहाँ पे मेरे इंटीग्यूमेंट्स मिलेंगे. The outer coverings are my integuments, and then in the center you will be finding your cells which are going to be your nucellus cells. पिक्चर आपके सामने ऑलरेडी आप ये पिक्चर देख चुके हो, राइट. अभी हम एम्ब्रियो सैक हमने बनाया नहीं है तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, बट बाकी सारी लेबलिंग्स आपको यहाँ पे याद रखनी है. ऑल अदर लेबलिंग्स आर समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, नाउ so we have discussed what is my funicle. Ovule in the ovary are attached to the placenta with the help of the funicle. You have hilum, junction between the ovule and the funicle. Integument, inner and outer integument surround the nucellus, provide protection to the developing embryo. Protective काम होता है इसका यहाँ पे. और अंदर जो आपको cells मिले, they are my nucellus. Nucellus, like अंदर जो cells उनको हम एक term दे रहे हैं यहाँ पे nucellus, they are nothing but my parenchymatous cells. Layer surrounding the embryo, function provide nourishment to the developing embryo. That is my nucellus. Macropyle integument enclose the ovule except at small opening. Small opening जो आपके यहाँ पे थी उसे हम बोलेंगे यहाँ पे macropyle. यहाँ से आपका पोलन ट्यूब अंदर आएगा आपके ओवल के अंदर. सो ये आपको याद रखना है, that's for macropyle. Okay. Now let's try to understand what happens inside the ovule.
अब आपका यहाँ पे जो ओव्यूल होगा, अज्यूम दैट दिस इज द ओव्यूल, राइट, और ओव्यूल के अंदर यू हैव नंबर ऑफ सेल्स, राइट, सो इसके अंदर आपके कई सारे आपके यहाँ पे न्यूक्लियस वाले आपके पास सेल्स है, सो यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स व्हिच आर देयर इन द ओव्यूल। अब ये जो आपके पास सेल्स है, इनमें से कुछ सेल, और आई वुड से इनमें से वन ऑफ द सेल विल बिहेव लाइक अ मेगास्पोर मदर सेल, तो इतने जितने आपके पास यहाँ पे सेल्स है ना, of them one of the cell can behave like a megaspore mother cell, MMC. So one of them will behave like a MMC, which stands for your megaspore mother cell, megaspore mother cell. अब मेगास्पोर मदर सेल जो आपका यहाँ पे होगा, वन ऑफ द सेल विच विल बी फाइंडिंग इनसाइड द ओव्यूल, दिस इज माय डिप्लॉयड सेल, सारे सेल मेरे यहाँ पे डिप्लॉयड ही है, दिस सेल विल अंडरगो मियोसिस, ये सेल आपका यहाँ पे करेगा मियोसिस, सो दिस सेल विल अंडरगो मियोसिस, और जब मेरा ये सेल यहाँ पे मियोसिस करेगा, सो आई विल बी गेटिंग 4 सेल्स, हमेशा की तरह जब भी आपका मियोसिस होता है तो उसके बाद आपको क्या मिलता है, यू विल गेट टू सी 4 सेल्स आर गेटिंग फॉर्म्ड, तो यहाँ पे आपको 4 सेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सो यू गेट टू सी 4 हैप्लॉइड सेल्स आर बीन फॉर्म्ड। ये जो 4 हैप्लॉइड सेल आपके यहाँ पे बने हैं, वी कॉल देम एज अ मेगास्पोर्स, दिस 4 हैप्लॉइड सेल व्हिच आर बीन फॉर्म्ड, यू कॉल देम एज अ मेगास्पोर, तो ये 4 सेल मेरे यहाँ पे बने हैं, यू कॉल देम एज अ मेगास्पोर। अब जब मेरे यहाँ पे 4 मेगास्पोर यहाँ पे बने, आउट ऑफ दिस 4 मेगास्पोर 3 विल अंडरगो डीजनरेशन, तो इन चारों में से 3 का यहाँ पे हो जाएगा डेथ, सो 3 ऑफ देम विल अंडरगो डीजनरेशन, 3 ऑफ देम विल अंडरगो डीजनरेशन, और जो आपका यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, द ओनली वन विच इज सर्वाइविंग राइट नाउ, द हैप्लॉइड सेल जो आपका यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, दिस विल बी कॉल्ड एज माय फंक्शनल मेगास्पोर, तो ये जो मेरे यहाँ पे सर्वाइव कर गया, दिस ओवर हियर विल बी कॉल्ड एज योर फंक्शनल मेगास्पोर, functional megaspore, and this functional megaspore is the one जिसके वजह से आपका पूरा एम्ब्रियोसैक बनेगा, so this is the one जिसकी वजह से आपने अपना एम्ब्रियोसैक यहाँ पे बनाना है, तो याद रखना, the megaspore which is surviving right now will be called as my functional megaspore, and now this functional megaspore will undergo 3 time mitosis, मेरा जो functional megaspore यहाँ पे होगा, तो आप यहाँ पे एक बार देख लो, the process of formation of megaspore from the megaspore mother cell via meiosis is called as my megasporogenesis. Only one of the megaspore remains functional and forms the embryo. Rest of the megaspore will degenerate. तो हमारा जो यहाँ पे बच गया ना, जो यहाँ पे सर्वाइव कर गया, this megaspore will undergo 3 time mitosis. यहाँ पे मैं आपको मेंशन करता हूँ, जो आपका functional megaspore यहाँ पे आपका रह जाता है, something you are all familiar with this, it will undergo 3 times nuclear mitosis. It will undergo 3 times nuclear mitosis. और ये करने के बाद आपका एम्ब्रियोसैक बनेगा, सो याद रखना, फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो 3 टाइम न्यूक्लियर माइटोसिस एंड देन इट विल गिव राइज टू योर एम्ब्रियोसैक, सो जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर। तो यहाँ पे इनिशियली यू हैव योर 2 सेल्स, 2 सेल के आपके यहाँ पे हो गए 4 एंड देन यहाँ पे आपके 8 हो गए, तो जब आप 3 टाइम्स माइटोसिस करते हो, इट इज आउटकम ऑफ व्हाट, इट इज आउटकम ऑफ योर 3 टाइम्स माइटोसिस, सो आपने 3 बार यू डिड 3 टाइम्स न्यूक्लियर माइटोसिस आपने यहाँ पे किया, मतलब आपका यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा, बस न्यूक्लियस आप यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, सो न्यूक्लियर माइटोसिस यू डिड ओवर हियर, and because of that you will find 8 nuclei will be formed in that particular cell, right? अब ये जो 8 से न्यूक्लिया मेरे यहाँ पे बने हैं, ये जो 8 न्यूक्लिया मेरे यहाँ पे बने हैं, इनको हम क्या करेंगे, विल अरेंज देम इन द एम्ब्रियो सैक, सो बेसिकली हम इन्हें यहाँ पे अरेंज करेंगे कि कौन कहाँ पे आपका आएगा, so you will find your embryo sac will look something like this. So these 3 nuclei will get their cell wall, इनको खुद की cell wall यहाँ पे मिल जाएगी, and these 3 over there are called as my antipodal cell. इनको हम बोलते हैं यहाँ पे as a antipodal cell. So antipodal cell are the cell which you find at the chalaza end के ऊपर, ठीक है? बाकी आपको यहाँ पे 3 सेल और भी मिलेंगे, so 3 सेल तो मेरे यहाँ पे which are my antipodal cell. Then you have 3 cells over there. इनमें से 2 जो मेरे यहाँ पे सेल है, these 2 cells which I have over here, ये 2 मेरे सेल्स होंगे, आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ सिनर्गेट सेल्स, these are my synergate cells, okay? This is my egg cell, ये मेरे यहाँ पे बन जाएगा, मेरे यहाँ पे egg cell, this will become over here as my egg cell. तो ये जो मेरे यहाँ पे सेल्स है ना, you have this 3 antipodal cell, so these are my into 3, you have your synergate cells which are going into 2, and then you have a egg cell जो मेरे यहाँ पे 1 है। इसके अलावा जो सेंटर में आपको यहाँ पे 2 चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है, these are going to be my polar nuclei, so these are called as my polar nuclei,
इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पोलर न्यूक्लियाई। तो इतनी चीजें हमने यहाँ पे देख ली। तो यहाँ पे हम यहाँ पे अभी कितने सेल यहाँ पे दिख रहे हैं? सो यू कैन सी यू हैव अ 3 सेल एट द टॉप, 2 नीचे हैं, 5 हो गए, राइट, एंड यू हैव अ 7th सेल, दैट्स माय एक्स सेल। ये मेरा यहाँ पे 7वां सेल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, राइट, सॉरी 6th सेल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दैट्स माय एक्स सेल। सो 3 + 2 5 एंड दिस इज द 6th वन। बट यहाँ पे आपका एक और सेल यहाँ पे आएगा एंड दिस इज द सेंट्रल सेल। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज माय सेंट्रल सेल, दिस इज माय सेंट्रल सेल। सो बेसिकली आपको यहाँ पे मिलेंगे आपके 7 सेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बनते हुए एम्ब्रियो सैक के अंदर। यू कैन सी 7 सेल स्ट्रक्चर विल बी सीन ओवर हियर। एंड हाउ मेनी न्यूक्लिया यू हैव? न्यूक्लिया आपके पास यहाँ पे कितने हैं? तो आप गिन लो, यहाँ पे 3 ऊपर है, 2 यहाँ पे है, 5, 6th one is the egg cell का न्यूक्लिया, and then you have the 2 nuclei in the center. So you can very clearly say that embryo sac or your female gametophyte will be having 7-celled 8 nucleated structure. 8 nucleated structure. So you'll find 7-celled 8 nucleated structure is something you will be seeing over here. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. So you will find, this is what you have to know over here, that you will have an embryo sac which will have a 7-celled 8 nucleated structure you will get to see. So आपको यहाँ मिलेंगे आपके यहाँ पे 3 antibodial cells, नीचे आपको मिलेंगे आपके synergate cells, X cell, you will have a polynuclei in the center and then you have a central cell यहाँ पे. So ये आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख जाएगा. So you have a 7-celled 8 nucleated embryo sac आपके यहाँ पे रेडी है. एग के पास में क्या क्या है? एग के पास आपके यहाँ पे 2 synergate cell आपके यहाँ पे मिल जाएंगे यहाँ पे, right, which are collectively called as my egg apparatus. So egg plus my synergate cells जो आपके यहाँ पे है, this is something which will be called as my egg apparatus. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे as egg apparatus. अब आप यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना, that आपका जो synergate cell होगा उसके ऊपर आपको लाइक यहाँ पे finger like projection आपको मिलेगा, and this finger like projection is called as my filiform apparatus. So finger like projection over here is called as your filiform apparatus. A filiform apparatus plus synergate cell will have a collective role in attracting your pollen grain. So filiform apparatus along with the synergate cell will have a collective role to attract the pollen grain. Basically pollen tube, it will attract the pollen tube और pollen tube को नीचे तक लेके आएगा. तो ये चीज भी हम बाद में देखेंगे. Okay, so that is how the embryo sac is getting formed. और इतने cells आपको यहाँ पे याद रखने हैं, and you should know that the embryo sac जो आपका mature embryo sac होता है उसके अंदर आपको इतनी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है. And this embryo sac can be also called as my female gametophyte. अगर मैं कहता हूँ male gametophyte, then you can say a pollen grain. If I say a female gametophyte, then you can say a embryo sac. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. Okay, now filiform apparatus is something now we know. X cell is something now we know. Synergate 2 cells at a macropyle end जो आपका मिल जाए, they will degenerate after fertilization. तो जो आपका fertilization हो रहा होगा, they will degenerate and they are present at the macropyle end के ऊपर. Filiform apparatus plus synergate will have a role in guiding the pollen tube inside the ovule. जो मैंने आपको बताया था कि लोग गाइड करेंगे आपके pollen tube को अंदर आने के लिए. Pollen nuclei you will find in the center. याद रखना pollen nuclei फ्यूचर में आपको यहाँ पे बना के देगा आपका एंडोस्पर्म. So pollen nuclei will actually help you to in the formation of the endosperm later on. Okay, it's there in the central cell में आपको pollen nuclei आपको मिलेगा यहाँ पे containing 2 nuclei called as pollen nuclei present at the center of the female gametophyte. And then you have the जो आपके चलाजल एंड पे जो आपके 3 एंटीबॉडी सेल थे अभी है, लेकिन वो बाद में भी डिजेनरेट हो जाते हैं, उनका कोई काम नहीं होता, दे विल अंडरगो डिजेनरेशन. तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है. दीस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो ओवर हियर. नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. यहाँ तक हमने ये चीजें यहाँ पे देख ली. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस ओवर हियर. अ डबल लेयर्ड वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज व्हाट? अ डबल लेयर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज गोइंग टू कॉल एज व्हाट? एबीसीडी बताओ इसका आंसर क्या होगा? हैंड रेज करके क्विकली यू कैन रेज योर हैंड टू आंसर दिस. You can write in the chat. Sorry, you can write in the chat your answer. जो आपकी जो डबल वॉल, चलो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ. जो आपको जो पोलन ग्रेन होता है, राइट, यू हैव अ डबल वॉल कवरिंग, यू हैव अ एक्साइन एंड इंटाइन, राइट. सो जो डबल वॉल कवरिंग आपके यहाँ पे पोलन ग्रेन की आपके यहाँ पे होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्पोरोडर्म. वी कॉल इट एज अ नॉट एंडोथीशियम, इट इज कॉल्ड एज माय स्पोरोडर्म. ठीक है, तो याद रखना ये बात को कि आपकी जो डबल वॉल कवरिंग जो आपकी होती है ना पोलन ग्रेन की, उसके लिए हम एक कॉमन टर्म यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वी कॉल इट एज स्पोरोडर्म. सो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आपको लेबलिंग से करनी है. सो टेक योर टाइम, टेक योर 1 minute एंड देन आंसर इन द चैट. सब लोग कोई एक बच्चा आके लैपटॉप के सामने बैठ जाए एंड सब लोग ग्रुप डिस्कशन करके टेल मी द करेक्ट आंसर इन दिस.
ए बी सी डी आपका यहाँ पे, क्या आपका यहाँ पे सही आंसर आपका यहाँ पे बैठ रहा है? लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू विल टू आंसर दिस। ये तो मैंने अभी भी लेबल किया था थोड़ी देर पहले, आई जस्ट लेबल्ड दिस थिंग। अच्छा, someone has said A, someone is saying B, कोई A कह रहा है। अगेन एमएसएफ गर्ल्स ने चेंज कर लिया अपना आंसर, दे हैव गॉन टू A। तलवारा इज सेइंग B। मैं बताऊं बी क्यों नहीं होगा यहाँ पे आंसर, क्योंकि यहाँ पे बी को लेवल क्या हुआ है एज अ आउटर इंटीग्रेंट। अब ये कहाँ से लग रहा है आपको आउटर इंटीग्रेंट बेटा? ये थोड़ी लग रहा है आउटर इंटीग्रेंट, सो दैट इज नॉट ट्रू। सो बी आपके यहाँ पे होगा नहीं। बाकी लोग भी आंसर कर सकते हो, बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हो। देखो मैंने आपको बताया था ना, द जंक्शन एट विच माई फनिकल अटैचेस विद द ओव्यूल दैट इज कॉल्ड माई हिलम। तो ये तो मेरे यहाँ पे हिलम हो गया, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, राइट। देन यू कैन सी यहाँ पे जो आपका जो बी है, दिस बी इज दैट स्ट्रक्चर ना जो आपका आ रहा है प्लेसेंटा के साइड से, तो दैट इज माई फनिकल, राइट। देन यू हैव द मैक्रोपाइल, तो क्लियरली पता चल जाएगी डी तो मेरे यहाँ पे जो ओपनिंग है आपके यहाँ मैक्रोपाइल है आपके यहाँ पे, ओके। एंड जो सी आपका यहाँ पे रह गया दैट हैज टू बी द न्यूसेलस। ये आपका आसपास के जो आपके सेल्स होते हैं दे आर माय न्यूसेलस ओवर देयर। तो यस ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन ए बोला है दैट्स अ करेक्ट आंसर। द मेगास्पोरियम ऑफ द एंजियोस्पर्म ऑन मैच्योरेशन गिव राइज टू व्हाट? तो आपका जो ओव्यूल यहाँ पे है वो अल्टीमेटली क्या बना के आपको देगा जब हो गया फर्टिलाइजेशन सब सही तरीके से, व्हाट विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर? चलिए आंसर करिए चैट के अंदर, बाकी स्कूल भी इन्वॉल्व करिए, लाइक गेट इन, गिव योर आंसर इन द चैट। चैट में तो आंसर करना है आपको, बताइए आपका जो ओव्यूल यहाँ पे होगा मेगास्पोरेंजियम, ये अल्टीमेटली आपको क्या बना के देगा? सो आई एम गेट आई हैव रिसीव्ड वन आंसर फ्रॉम एमएसएफ गर्ल्स। बाकी लोग भी ट्राई करिए, क्या हो सकता है इसका आंसर यहाँ पे? इट इज गोइंग टू बी सीड। याद रखना बेटा, सी मेगास्पोरेंजियम इज नथिंग बट माय ओव्यूल, megasporangium is nothing but your ovule, and this ovule in future after maturation will give rise to a seed। सिंपल सी बात है, आपको हमेशा याद रखनी कि आपको जो ओवल होता है वो सीड बनाता है, और जो आपका ओवरी होगा the ovary will always give rise to your fruit। So ovary will give rise to a fruit and your ovule will give rise to your, sorry, ovary will give rise to a fruit and your ovule will give rise to the seed हमेशा। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। सो मैच्योरेशन के बाद आपका जो ओव्यूल होगा यहाँ पे दैट इज गोइंग टू गिव राइज टू अ सीड। सो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, ओके। अब इसका आंसर कर सकते हो, अभी भी मैंने आपको ये बात बताई थी, ध्यान से देखो। एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल थ्रू, तो क्या इवेंट होने के बाद आपका यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बनता है? सो व्हाट डू यू थिंक विल बी अ करेक्ट आंसर ओवर हियर? चलो सबसे एक्टिव है हमारे पास यहाँ पे हमारा एमएसएफ गर्ल्स, वेरी गुड। बाकी लोग, देन वी हैव अदर आंसर्स आर आल्सो कमिंग। तलवारा से आंसर आ चुका है, वन मोर स्कूल, फिरोजपुर बॉयज स्कूल से भी आंसर आ चुका है। अदर पीपल कैन आल्सो आंसर दिस कि आपका एम्ब्रियो सैक आपका यहाँ पे कैसे बन रहा है। आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग कि आपका एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए यू हैव अ सिंगल मेगास्पोर, राइट। सो यू हैव अ फंक्शनल मेगास्पोर, सॉरी यू हैव अ फंक्शनल माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल दैट विल अंडरगो मियोसिस। वो करेगा आपका पहले वन टाइम मियोसिस और उसके बाद आपका यहाँ पे होगा थ्री टाइम माइटोसिस। सो वन टाइम मियोसिस और थ्री टाइम माइटोसिस करने के बाद यू विल गेट टू सी कि आपका यहाँ पे मेगास्पोर बन के आपको वहां पे मिल जाएगा। यू विल फाइंड द मेगास्पोर विल बी गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर, योर एम्ब्रियो सैक विल गेट फॉर्म्ड ओवर देयर। मैंने बताया था ना आपको यहाँ पे दैट यू विल यूज अ सिंगल एमएमसी व्हिच इज योर डिप्लॉयड सेल, दिस विल अंडरगो मियोसिस, और ये जब आपका मियोसिस करता है सो दिस विल गिव राइज टू योर फोर सेल्स। और इन चारों में से आपको याद रखना है कि तीन आपके यहाँ पे होते हैं डीजेनरेट, ऑफ दिस फोर सेल थ्री ऑफ देम विल अंडरगो डीजेनरेशन, और जो एक सेल आपके यहाँ पे बच गया दैट विल अंडरगो थ्री टाइम्स माइटोसिस। सो थ्री टाइम्स न्यूक्लियर माइटोसिस इसके अंदर होगा और उससे बनेगा आपका यहाँ पे एम्ब्रियो सैक। सो दिस विल गिव राइज टू एम्ब्रियो सैक कलेक्टिवली। सो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आई वांट ऑल अदर स्कूल आल्सो टू गेट इन्वॉल्वड ओवर हियर। फिलीफॉर्म apparatus फाउंड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म इज द थिकनिंग ऑन। ये जो फिलीफॉर्म apparatus आपका होता है वो किसके ऊपर अटैच होता है, कौन से स्ट्रक्चर के साथ वो वहां पे आपका अटैच रहेगा? वेरी गुड, दो आंसर आ गए हमारे पास, बाकी लोग भी ट्राई करिए।
ओके, तलवारा से भी हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है. इट इज गोइंग टू बी योर सिनर्गिड सेल्स, राइट. सो सिनर्गिड सेल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर द वन जिनके ऊपर आपका फिलिफॉर्म एपरेटस आपके यहाँ पे अटैच होता है, और ये कलेक्टिवली आपकी मदद करता है इन गार्डिंग द पुलन ट्यूब. आपका जो पुलन ट्यूब आपका आ रहा होगा, दैट इज ऑल कमिंग बिकॉज ऑफ दिस interaction between this filiform apparatus synergid cell and the pollen grain. All right, so you have a labeling over here. I hope सबको यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हो. I hope the picture is good enough. The picture is good enough to give me the correct labeling. C आपको यहाँ पे दिख रहा है, A आपको यहाँ पे दिख रहा है, B आपको यहाँ पे दिख रहा है, right? So A, B and C. Now you can answer over here. ओहो, दो अलग अलग आंसर मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं अभी यहाँ पे. बाकी लोग भी ट्राई करिए. अदर स्कूल एज वेल, लुधियाना, जालंधर. You can also start giving your answers. All right, चलो बताओ. डी आ रहा है आप लोग का आंसर. चलो देखते हैं हम यहाँ पे. सी जो आपका यहाँ पे होगा, सी तो बहुत क्लियर है आप मेरा यहाँ पे, दैट सी इज माय पोलर न्यूक्लिया. सी तो मेरा यहाँ पे पोलर न्यूक्लिया ही है, राइट. तो अगर मेरे यहाँ पे सी पोलर न्यूक्लिया है यहाँ पे, सो दैट मीन्स योर ऑप्शन बी एंड डी में से कोई एक मेरा यहाँ पे होना चाहिए. ठीक है, इन दोनों में से कोई एक मेरा यहाँ पे आंसर होगा, राइट. द वन थिंग इज देयर इज कि यहाँ पे आपका ऑप्शन डी यहाँ पे आपका मेंशन नहीं किया हुआ. सो ठीक है, लेट्स स्टिल ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. देन यू हैव ऑप्शन ए. ऑप्शन ए दोनों के अंदर आपका सेंट्रल सेल है, सो आई थिंक दैट इज वेरी मच क्लियर ओवर हियर. एंड देन यू हैव योर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी हैज टू बी योर सिनर्गेट सेल्स इन दिस, राइट. सो बेसिकली आपके ए तीन आपके यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी आपका मेंशन है. सो इसमें एक एरर है, द क्वेश्चन इटसेल्फ हैज अ एरर राइट नाउ, राइट. सो इफ यू कैन से मी ऑप्शन बी आप यहाँ पे कह रहे हो, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन डी भी कह रहे हो, दोनों में से कोई भी आपका आंसर यहाँ पे आपका निकल जा सकता है. बोथ ऑफ देम हैव ऑल द सेम लेबलिंग एक्सेप्ट द डी जो आप यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ. अगर मैं कहता कि ये डी है मेरा यहाँ पे, इफ आई से दिस इज माय डी, देन आप कहते हैं यहाँ पे दैट इट हैज टू बी माय फिलिफॉर्म एपरेटस, एंड इन दैट केस माय ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेबलिंग डी यहाँ पे एब्सेंट था हमारा, बट अगर हम कहते कि वो नीचे वाला लेबलिंग मेरा डी होता, देन वी कुड हैव सेड ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर. ऑलराइट. मेगास्पोर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर. अब ये आप कर सकते हो, ऑलरेडी मैं आपको 2 बार बता चुका हूं. मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर. ऑलराइट, सबके आंसर यहाँ पे आ गए. यस, दिस इज माय ऑप्शन डी. बिल्कुल, एमएमसी में से जब आप मेगास्पोर बना रहे हो, दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मियोटिक डिवीजन. ये मियोटिक डिवीजन के बाद ही आपको बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ट्रू. इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू. एक एंजियोस्पर्म के अंदर फंक्शनल मेगास्पोर किस में बेसिकली क्या आपको बना के देगा यहाँ पे? ऑलराइट, yes, 3 schools are actively engaging right now. I want other school also should engage in this. I know all of you know this answer. It is your embryo sac. So embryo sac आपका बनेगा आपका यहाँ पे from a functional megaspore. Megasporium is equivalent to what? Megasporium is going to be equivalent to what? ये आपका किससे आपका equivalent आपका यहाँ पे हो जाएगा. सिंपल है ये बेटा, सिंपल है ये क्वेश्चन भी सिंपल है, कर सकते हो आप लोग यहाँ पे. It is, yes, it is always going to be your option B. मैंने आपको पहले बताया था मेगास्पोरियम को हम बोलते हैं यहाँ पे एज ओव्यूल, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर. मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस व्हाट. एक मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपको क्या बना के देता है? सो मेल गैमेटोफाइट के अंदर लाइक आपको क्या मिल जाएगा इसमें से देखने के लिए. किसी ने बी बोला है, किसी ने सी बोला है, फिर किसी ने वापस सी बोला है, राइट. It is going to be your option C. 2 sperms and a vegetative cell. तो ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर. आपके मेल गैमेटोफाइट के अंदर बेसिस ऑफ पोलन ग्रेन यू विल हैव 2 sperms और आपका एक वेजिटेटिव सेल आपको बनके आपके यहाँ पे मिल जाएगा, राइट. फिलिफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. फिलिफॉर्म एपरेटस आपका यहाँ से किससे जुड़ा हुआ है? ये सारे आपके नीट के क्वेश्चन से यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क, राइट. दैट्स ट्रू, इट इज माय सिनर्गेट सेल्स. इससे जुड़ा है मेरे यहाँ पे फिलिफॉर्म एपरेटस, और दोनों कलेक्टिवली मिलके अपने पोलन ट्यूब को यहाँ पे गाइड करेंगे. फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस इज 2. ABCD बताइए जल्दी. फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस इज गोइंग टू बी व्हाट? MSF गर्ल्स, देन
team Firozpur and then Talwara. Yes. Option D is the correct answer to guide the entry of the pollen tube. So यहाँ basically आपका filiform apparatus help करता है आपके entry करने में आपके pollen tube की. The ovule of the angiosperm ये हम already कर चुके हैं. So it is going to be your option option A. The ovule of the angiosperm is technically equivalent to your megasporangium. In majority of the angiosperm, now read the statement carefully. Statements को आप यहाँ पे ध्यान से देखो and then give the correct answer. In majority of the angiosperm, what will be the correct statement? ध्यान से करना. हो गया? एक आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर कर दीजिए फटाफट so we can move ahead. It is going to be your, देखो statement 1 तो मेरे यहाँ पे सही नहीं है ना. Egg has filiform apparatus, ये तो मेरा wrong हो गया. That's a wrong statement, that's a false statement. क्योंकि मेरा filiform apparatus I'll be finding attached with the synergate cells. तो ये तो wrong हो गया. There are numerous antipodal cell, ये भी गलत बात है. Numerous नहीं होते, 3 ही होते हैं. So that statement also becomes false, right? Statement D, a small central cell is present in the embryo sac. ये बात भी आपकी गलत है, बहुत बड़ा होता है central cell. So that statement over here is also going to be false in this. Reduction division occurs in the megaspore mother cell. That's true. ये बात आपके यहाँ पे सही है. Reduction division मतलब आपका meiosis. So yes, reduction division takes place in the megaspore mother cell और ये बात आपके यहाँ पे सही है and that is why option C becomes the correct answer. Which is the most common type of embryo sac in the angiosperm? अब मैं आपको यहाँ पे एक hint देता हूँ. मोनोस्पोरिक का मतलब ये होता है, मोनोस्पोरिक का मतलब यहाँ पे ये होगा when you have a single megaspore involved in formation of the embryo sac. When a single megaspore is involved to form embryo sac. तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे मोनोस्पोरिक. ठीक है. सो हमने तो अभी तक वही देखा ना कि हमारा सिंगल मेगास्पोर बना रहा था हमारा पूरा एम्ब्रियो सैक. तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका कौन सा आंसर आपके यहाँ पे सही हो जाएगा? ऑलरेडी वी हैव आंसर. इट इज माय ऑप्शन बी. सो कॉमन टाइप एम्ब्रियो सैक इज गोइंग टू बी मोनोस्पोरिक विद 3 sequential mitotic division. Yes, that is what you will be finding in this. Functional megaspore in the embryo sac develops into an embryo sac. Something we have already done this. Option B, true. ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हो गए. Now let's jump on to my pollination. अब pollination को मैं यहाँ पे I would strongly recommend all of you to read it from your side. एक हम इसको फटाफट रिवाइज करते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार पढ़े और इसके भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें जो अभी हम सॉल्व करेंगे. सो यू नो व्हाट इज पोलिनेशन, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. इसके आपके 2 टाइप्स आपके यहाँ पे मिल जाएंगे, सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन. क्रॉस को हम बोलेंगे यहाँ पे ज़ेनोगैमी. ज़ेनोगैमी में आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट अ पोलन ग्रेन फ्रॉम अ फ्लावर is going and sitting on the stigma of another flower of another plant. So दोनों प्लांट मेरे यहाँ पे अलग अलग है. So both plants are genetically different and that is what happens in my xenogamy. तो xenogamy के अंदर एक pollen grain निकलेगा एक फ्लावर में से, जाके बैठेगा स्टिग्मा के ऊपर दूसरे फ्लावर के ऊपर, but that दूसरा फ्लावर will be on the another plant. Okay. Then we have a autogamy and geitonogamy. Autogamy में the pollen grain are coming out from the flower and sitting on the stigma of the same flower. They are sitting on the stigma of the same flower. So that is my autogamy. Geitonogamy में आपके यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका pollen grain निकल के आ रहा है बाहर फ्लावर में से, falling on the another flower but of the same plant. Falling on the another flower but of the same plant. तो बेसिकली यहाँ पे आपको कोई जेनेटिक वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा. ऑटोगैमी और गेटोगैमी के अंदर देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन. तो यहाँ पे आपको कोई जेनेटिक वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा. सो लेट मी राइट इट डाउन. सो जेनेटिक वेरिएशन ओवर देयर इज नॉट सी. ठीक है, चलो. So inside when you talk about the autogamy itself, then you have a chesmogamy and you have a clistogamous flower. Chesmogamous flower क्या होता है, जो फ्लावर ओपन होता है. इनके अंदर तो पॉसिबल है कि पोलन ग्रेन वहां से कहीं और जा भी सकता है, राइट. बट क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है, दैट यू विल फाइंड द फ्लावर रिमेन क्लोज्ड ऑल द टाइम. सो आपका बड खुलता ही नहीं है. अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर ऑल द टाइम गोइंग टू शो द ऑटोगैमी. इनमें तो कोई चांस ही नहीं है कि ऑटोगैमी के अलावा कुछ हो, बिकॉज आपका बड ही ओपन नहीं होता और अंदर आपका एंथर मेच्योर होगा. एंथर में से पोलन ग्रेन निकलेंगे, दे विल फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम क्लोज्ड फ्लावर एंड विल लीड टू अ सीड फॉर्मेशन.
So याद रखना है आपको यहाँ पे कि क्लिस्ट्रोगैमी जो आपके फ्लावर्स होते हैं दे ऑलवेज रिमेन क्लोज। तो इसमें तो आपका 100% आपका यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होता है। इसमें भी आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होता है, बट इट स्टिल हैज अ पॉसिबिलिटी कि अगर फ्लावर ओपन है तो उसके पोलिन कहीं और जाके लाइक दे कैन जर्मिनेट, बट बोथ ऑफ देम यूजुअली कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माय ऑटोगैमी इटसेल्फ। ठीक है, एक में फ्लावर ओपन होगा, एक में आपका फ्लावर यहाँ पे रहेगा क्लोज्ड, राइट। दिस इज योर सेल्फ पोलिनेशन विच इज बीन हैपनिंग ओवर हियर। सेल्फ पोलिनेशन का यहाँ पे नुकसान ये है दैट यू डोंट हैव वेरिएशन। फायदा ये है दैट यहाँ पे आपके एनर्जी का इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। आपको बहुत ज्यादा पोलिन आपको यहाँ पे नहीं बनाने, 100% सीड फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। सो दैट इज एडवांटेज ऑफ माय सेल्फ पॉलिनेशन, बट आपको जेनेटिक वेरिएशन आपको यहाँ पे नहीं मिलता। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर की, अगर मेरा फ्लावर क्लोज्ड है देन इट अश्योर्स मी दैट 100% सीड फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होगा, और ये सब करने के लिए ज्यादा एनर्जी का एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो। So you have Viola, Oelis, Camellia are the flowers which are going to be falling under this, which are called as my Chasmogamous flower. ठीक है, produce two type of flower, Chasmogamous as well as my Clistogamous. These flower which open and are similar to the flower of the other species with exposed anther and the stigma. These are my Chasmogamous flower. Examples भूलना मत, examples आपके आएंगे, they examples can become a potential question in your NEET exam. You should know them. Clistogamous में flower do not open at all. In this flower, the anther and stigma lie close to each other. When anther dehisces in the flower bud, pollen grain come in contact with the stigma of the to effect the pollination. यहाँ पे 100% seed formation आपको मिलेगा without the expenditure of the energy. Clistogamous flower are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. Clistogamous flower produce assured seed. याद रखना, they will produce assured seeds even in the absence of the pollinator. ये आपको सीड फॉर्मेशन आपको करके दे देंगे। ऑटोगैमी समथिंग वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, हम यहाँ पे देख चुके हैं, सो लेट्स नॉट स्पेंड टाइम ओवर हियर। ऑटोगैमी सिंपली मींस माय सेल्फ पॉलिनेशन, सिंपल, दिस इज माय सेल्फ पॉलिनेशन। गिटोग्रामी आप यहाँ पे याद रखना, ये इसके ऊपर सवाल आता है आपका कई बार, दैट पोलन ग्रेन फ्लावर से निकल रहा है फॉलिंग ऑन द अनदर फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट। सो पॉलिनेशन टेकिंग प्लेस बिटवीन द टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, दैट इज माय गिटोग्रामी। Genetically self-pollination, but ecologically and functionally it's a cross-pollination. But आपको वेरिएशन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। Ecologically आप इसे कह सकते हैं cross-pollination, but you don't have variation in this. So it is similar to my autogamy itself. मेज आपका यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाएगा। यहाँ पे मेज के अंदर आपको गिटोग्रामी होते हुए आपको मिल जाती है। ऑटोगैमी की पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। यू कैन सी अ फ्लावर में से पोलन ग्रेन निकल के फॉल कर रहा है आपके स्टिग्मा के ऊपर। सो दैट्स व्हाट यू कैन सी इन दिस। सिमिलरली यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ गिटोग्रामी। ये डेफिनेशंस आती हैं नीट एग्जाम के अंदर, तो आपको मालूम होना चाहिए। आई होप इसको लेके कोई कंफ्यूजिंग पार्ट आपको यहाँ पे नहीं लग रहा। लेट मी नो अगर कोई चीज रिपीट करनी हो। अगेन वन मोर थिंग, ये मत सोचना कि क्लास में चीज रिपीट नहीं की जा सकती। अगर आपको लग रहा है ना कि सर ये स्लाइड समझ नहीं आया, या प्लीज रिपीट दैट थिंग, देन जस्ट लेट मी नो, वी कैन रिपीट दोस थिंग्स। ओके, सो यू कैन सी pollen grain are coming and falling on the another flower of the same plant. Okay, transfer of pollen grain from one flower to stigma of another flower of the same plant. That's my geitonogamy. Cross pollination in a true sense, xenogamy आपका यहाँ पे है। So here you can see आपके यहाँ पे pollen grain आपका यहाँ से एक flower में से निकलेगा, and will come and fall onto the stigma of another flower. This is my xenogamy. This over here is going to be called as my xenogamy. Agents of pollination. So I have abiotic and biotic factors over here. Your animal, birds, bees. So अब हम यहाँ पे बात करें कि pollination कराता कौन है. So you have abiotic factors. Abiotic में you will have a water and the wind. Okay. अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है. You have to know one thing very clearly कि अगर मेरा कोई plant है और अगर वो wind पे depend करता है pollination के लिए, then I have to know कि उसके characters वहाँ पे क्या होंगे. They also become a potential question for you. So we have to remember what are the characters of the plant which depends on wind for pollination. तो अगर आप विंड के ऊपर डिपेंड करो पॉलिनेशन के लिए, तो कुछ चीजें तो आपको वहां पे नहीं मिलेंगी। जैसे सच फ्लावर्स विल हैव नो कलर, सो कलर विल नॉट बी सीन द फ्लावर्स। यू विल हैव, देयर विल बी नो नेक्टर फॉर्मेशन, नेक्टर फॉर्मेशन आपको वहां पे नहीं मिलेगा, राइट। यू विल हैव दीज फ्लावर्स आर द वन विच विल बी स्मॉल इन साइज, दे आर स्मॉल इन साइज and they produce large number of pollen grain. They produce large number of pollen grain. अब सिंपल सी बात है, अगर आप विंड पे डिपेंड करते हो अपने पॉलिनेशन के लिए,
तो काफी लाइकली चांस है कि काफी ज्यादा पोलन ग्रेन तो कहीं और ही चला जाएगा. इट वॉन्ट इवन रीच टू द right plant of a right stigma. So that is why they are known to produce a large number of pollen grain. Okay, they have small dry pollen grain. So pollen grain are going to be dry pollen grain. So you'll have a dry and small pollen grain आपका भी मिल जाएंगे. Okay, they have a feathery stigma. They have a feathery stigma. अब स्टिग्मा आपका यहाँ पे फेदरी इसलिए होता है ताकि वो ट्रैप कर सके पोलन ग्रेन को. अगर हवा में कोई पोलन ग्रेन जा रहा है उड़ के, तो उसको पकड़ने के लिए दे विल हैव द फेदरी स्टिग्मा. तो उनका स्टिग्मा काफी फेदरी होगा ताकि वो ट्रैप कर सके. एंड द प्लांट व्हिच डिपेंड ऑन विंड फॉर पॉलिनेशन, दे जनरली हैव अ सिंगल ओव्यूल. दे हैव अ सिंगल ओव्यूल. सिंगल ओव्यूल आपको मिलेगी ऐसे प्लांट्स के अंदर. ठीक है, नेक्टर फ्लावर बनाने को कोई यहाँ पे पर्पस नहीं है, बिकॉज आप किसी बर्ड या किसी इंसेक्ट को आप यहाँ पे बुला नहीं रहे. So this is what you will get to see in them. So that's, and flowers will also have a dull color. Huh? Flowers will have a very dull color, like whitish or grayish color के flower. Whitish or you will have a dull color flowers will be seen in this. So transfer of pollen grain via wind. Example corn. Adaptation आपके यहाँ पे क्या है? Feathery and sticky stigma to trap pollen. Lightweight pollen grain to be carried by the wind. Non-sticky pollen exposed, non-sticky मतलब dry pollen exposed anther, and flowers are not bright or colorful and do not produce nectar. Flowers have a single ovule inside each ovary, and pollen are produced in a large number, as most of them might not reach the stigma. So these are the adaptations, or these are the traits I will find in the plants which depend on the wind for my pollination. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, because they can become a potential statement वाले questions. ठीक है, inside की picture you can see the feathery stigma over here, right? अब हम बात करते हैं यहाँ पे. So that is all about my pollination by my wind. Now you have pollination happening because of the water. So you have two plants in front of you. You have a water hyacinth and water lily. Even though they are my aquatic plant, इनके अंदर pollination पानी की वजह से नहीं होता. They are pollinated by my insect or wind. तो water lily या water hyacinth जो होता है ना, उसका जो flower emerge करता है वो surface पे करता है. So जो आपका flower bloom करेगा वो आपका surface पे करेगा. और क्योंकि मेरा flower यहाँ पे surface पे bloom कर रहा है, तो यहाँ पे इंसेक्ट आ सकता है, विंड आ सकता है, और उनके थ्रू यहाँ पे पॉलिनेशन आपका यहाँ पे होगा. तो प्लीज याद रखना, इवन दो दे आर माय एक्वेटिक प्लांट्स, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर माय पॉलिनेशन. ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद. ठीक है, सो वाटर हाइसिंथ, इसको हम इवन कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल. इन्वेजिव स्पीशीज है ये, एलियन स्पीशीज है हमारे यहाँ पे. वाटर लिली तो चलो तो भी अच्छा है, राइट? ओके, अब हाइड्रोफिली मतलब व्हेन यू एक्चुअली डिपेंड ऑन वाटर फॉर माय पॉलिनेशन. तो यहाँ पे आपके दो टाइप्स आपको हमें मिलेंगे, तो इन टाइप्स को आप याद रखना. यू हैव अ इपी हाइड्रोफिली. इपी हाइड्रोफिली अगर आपके सामने टर्म आ रहा है, दैट मींस पोलन ग्रेन ट्रैवलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. ट्रैवलिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर. पानी के सरफेस के ऊपर मेरे यहाँ पे पोलन ग्रेन ट्रैवल करेगा. सो पोलन ग्रेन विल ट्रैवलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. तो पानी के सरफेस में पोलन ग्रेन यहाँ पे ट्रैवल करेगा. पॉलिनेशन दैट अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इज कॉल्ड एज माय एपी हाइड्रोफिली. एग्जांपल आपको याद रखना है योर वेलिसिनेरिया. वेलिसिनेरिया एनसीईआरटी का एग्जांपल है जो आपको क्लियर कट याद रखना है. इसके अंदर आपको यहाँ पे पानी के सरफेस के ऊपर, मतलब सबमर्ज होके नहीं, पानी के सरफेस के ऊपर आपका पोलन ग्रेन ट्रैवल करेगा. ओके, सो इन वेलिसिनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच टू द सरफेस ऑफ द वाटर. तो फीमेल फ्लावर पहले नीचे होता है, मतलब सबमर्ज्ड होता है. इट विल कम ऑन टू द सरफेस, एंड जो मेल फ्लावर होता है वो डिटैच होता है प्लांट से, और वो आएगा आपका सरफेस के ऊपर. एंड मेल फ्लावर्स आर रिलीज ऑन टू द सरफेस ऑफ द वाटर. अब मेल फ्लावर जब मेरा सरफेस पे आता है, देन इट विल स्लोली ट्रैवल टुवर्ड्स द फीमेल फ्लावर, एंड देन वहां पे जाके वो अपना पोलन ग्रेन को रिलीज करेगा. मेल फ्लावर्स आर कैरिड पैसिवली बाय द वाटर करंट. सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. तो आपके यहाँ पे वेलिसिनेरिया का एग्जांपल है. एंड ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन वाया वाटर, ये सारे एग्जांपल है ना, वेलिसिनेरिया, हाइड्रिला, ज़ोस्टेरिया. अभी आप वेलिसिनेरिया को याद रखना एज एग्जांपल ऑफ ईपी हाइड्रोफिली. हाइड्रिलिया और ज़ोस्टेरिया में तो आपका होता है आपका हाइपोहाइड्रोफिली. ओके, चलो. पॉलिनेशन बाय वाटर इज नॉट कॉमन. याद रखना, ये बहुत कॉमन है नहीं. इट इज ओनली सीन इन माय 30 जेनेरा. I'll just take 2 more minutes and then we'll wrap this up. ठीक है, I know it's your time, but we'll take 2-4 minutes more. It will have 30 genera. याद रखना, आपके
Aquatic plants के you have 30 genera which actually depend on water for pollination. Adaptation usually आपको क्या मिलता है यहाँ पे? Pollen grain have a mucilaginous covering. So pollen grain जो पानी के अंदर ट्रेवल करते हैं उनके आसपास आपको मिलेगा mucilaginous covering, जिसके वजह से वो गीले नहीं होते हैं. Because of that they are not getting wet. Flowers are not brightly colored. कोई मतलब नहीं है कलर को फ्लावर को ब्राइट कलर बनाने का. Neither the nectar are getting formed. ये देखो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है वेलिसिनेरिया के पास. तो ये आपको यहाँ पे स्मॉल सोल आपको यहाँ पे देखिए दीज आर मेल फ्लावर्स. सो मेल फ्लावर्स पानी के साथ स्विम करते हुए फीमेल तक पहुंचेंगे एंड देन दे विल रिलीज देयर पोलन ग्रेन. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो रहा है. एंड इन वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज द पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग वेट बाय म्यूसिलिजिनियस कवरिंग. ये बार बार याद रखना है आपको बिकॉज अगेन दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ माई प्लांट्स विच डिपेंड ऑन वाटर फॉर पॉलिनेशन. Zostera, इसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ सी ग्रास. वी ऑल्सो कॉल इट एज अ सी ग्रास. इसके अंदर आपका पोलन ग्रेन पानी के अंदर रह के ट्रैवल करता है. सो इसके अंदर आपको जो पोलन ग्रेन होगा इट विल ट्रैवल गेटिंग सबमर्ज्ड इन द वाटर. यहाँ पे आपको जो पोलन ग्रेन आएगा जो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा बट दिस विल शो माई हाइपोहाइड्रोफिली. दैट मीन्स यहाँ पे पोलन ग्रेन पानी के अंदर सबमर्ज होकर ट्रैवल कर रहा होगा. लेट्स सी दैट. In most of the water pollinated species, pollen grain are protected from wetting by mucilaginous covering, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ यहाँ पे. एक और बात याद रखना, अगर मैं Zostera की यहाँ पे बात करता हूँ, they have a ribbon shaped pollen grain. They have a ribbon shaped pollen grain. This is one thing you have to know कि इसमें ribbon shaped pollen grain आपको यहाँ पे मिलेगा और ये पोलन ग्रेन पानी के सरफेस के नीचे ट्रैवल करेगा. इट विल बी ट्रैवलिंग अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर. सो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हाइपोहाइड्रोफिली. राइट, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, व्हिच मेक्स सेंस. तो यहाँ पे हमने हमारे अबायोटिक फैक्टर्स हमने यहाँ पे देख लिए. वी हैव सीन द अबायोटिक फैक्टर्स एंड व्हाट दे आर डूइंग ओवर हियर. ठीक है, सो लेट्स कीप इट अप टू हियर इटसेल्फ. यहाँ तक ही रखता हूं इसे. आई वोंट बी गोइंग बियॉन्ड दिस. आगे हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं एंड कल हम लोग जब वापस मिलेंगे सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीड ऑल दिस थिंग फ्रॉम योर साइड. एक बार आप जो बायोटिक फैक्टर्स है ना उनके रिलेशन में जो आपका पॉलिनेशन आपका यहाँ पे हो रहा है एक बार आप अपने एंड से एक बार आप पढ़ लो एंड कल हम लोग जब वापस मिलेंगे विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन सॉल्विंग. ठीक है, सो फ्रॉम टुमारो व्हाट विल डू ना विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन सॉल्विंग. हम ये क्वेश्चन हमारे जो आपके सामने विल सॉल्व देम. एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इफ पॉसिबल. लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन ओवर हियर. यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख पा रहे हैं? आपको क्वेश्चन ब्लर हो रहा है यहाँ पे. लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन एंड देन विल रैप दिस अप. सो फ्लावर्स व्हिच हैव अ सिंगल ओव्यूल इन एन ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेंसेस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय. इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? जब आपका फ्लावर है जिसके अंदर आपकी सिंगल ओव्यूल है आपका ओवरी के अंदर, तो इसके अंदर आपका पॉलिनेशन आपका जो होगा वो आपका कैसे हो रहा होगा? सम ऑफ यू हैव आंसर्ड दिस. बाकी लोग भी ट्राई करिए. It is going to be your right, but yeah, it is going to be your option B. विंड के थ्रू ही आपका यहाँ पे होगा. So let's do one thing. Next class जो हमारी यहाँ पे होगी कल, so अपने एंड से आप पॉलिनेशन वाला पार्ट एक बार इसे पढ़ के आओ. We'll solve questions जो हमारे यहाँ पे and then we'll do something else and then again we'll solve some questions. The idea is to solve as many questions as possible because ये चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. So I'll be slightly faster. I'll just explain you certain things which I think which are going to be slightly more important to be understood. उस पे मैं ऊपर में ध्यान दूंगा. बट उसके अलावा I want all of you to read all these things from the NCERT ताकि हम ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सके और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए. ठीक है, और एक बाकी तीनों का आंसर यहाँ पे सही था. आप लोगों ने जितने भी आंसर किया that's going to be wind is going to be correct answer. Okay. Now if anyone has any kind of questions, अगर कोई सवाल है आपका यहाँ पे then you can ask a question. कोई सवाल है, मेरी है, if there's something you want to share then please ask your question.